Very good morning to everyone. So this is the sum we will be doing in front of your screen. The following is the trial balance of a firm as on 31st December 2013. So the drawings are given. Drawing is A 15,000, B 7,500, C 1,500. Then furniture is given. Furniture is a asset 10,500. Then purchases is given 1,10,000. Stock is given. This is opening stock because closing stock is given in the adjustment. Then general expenses are there, salary is there, rent and taxes are there, all will come. General expense, salary and rent and taxes all will come in the profit and loss account. Then we have debtors. Debtors is asset, bank balance is asset. Then in the credit side of the trial balance, capital is given of A, B, and C. Then there is sales, trading account, and there is creditor, it is liability. Now adjustment, A and B were partners sharing profits and losses equally. Means A and B were partners and they used to share profits and losses equally. Then they admitted C to the partnership on 1st July 2013. The year ends at 31st December, means the admission has taken place not in January, not in the first day of the year, not at the beginning, but in the middle of the year. Admission has taken place in the middle of the year. Admission has taken place in the middle of the year on 1st July 2013. On 31st December 2013, stock was valued at rupees 23,500. This is closing stock. Rent and rates paid in advance means prepaid. There is prepaid rent and rates. Usko highlight karo. That is the adjustment. And then we have general expenses were outstanding 800. General expense also is having a adjustment 800. Then depreciation on furniture. So furniture pe 10% depreciation. Furniture is also having a adjustment. Now share of goodwill of new partner was valued at rupees 1,000 on 1st July 2013 and yet to be adjusted. This goodwill has to be adjusted. The goodwill has to be adjusted. The new partner is going to, like, he's no, it is the share of the new partner, the share of goodwill of the new partner is 1,000. Share of goodwill of new partner is 1,000 and that has to be adjusted among the old partners. That has to be adjusted among the old partners. So let us see, we will be doing this sum. You are required to prepare trading profit and loss account for the year ended 31st December and balance sheet. So now let us start the sum. Let us start the sum. See here, because the admission has taken place in the middle of the year, so before admission, P&L account will have two amount column in each of the side, debit and credit, for before admission months and after admission month. Trading account will remain the same, but kya hoga?
ये एडमिशन क्योंकि 1 जुलाई में हुआ है, तो बिफोर एडमिशन के 6 महीने एंड आफ्टर एडमिशन के 6 महीने. हाउ डू आई नो 6 मंथ? तो जैन से जून 6 मंथ होता है. जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीना, और जुलाई से दिसंबर 6 महीना. सो बिफोर एडमिशन all the profit will go to the old partner, and after admission the profit or loss will go to all the partners. Before admission only the old partners, and after admission even the new admitted partner will get the share in the profits and have to bear the losses. सो बिफोर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन, ऐसे 2 कॉलम करना है. अगर एडमिशन मिडल ऑफ द ईयर में कभी भी होता है तो फर्स्ट डे बिगिनिंग में हुआ तो सारा प्रॉफिट तीनों को मिलेगा, न्यू पार्टनर को भी मिलेगा. बट इन बिटवीन हुआ तो बिफोर एडमिशन ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा प्रॉफिट लॉस, आफ्टर एडमिशन तीनों को मिलेगा. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द सम. सबसे पहले ड्रॉइंग विल कम इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ड्रॉइंग हमेशा डेबिट साइड में आता है क्योंकि लेस करते हैं ड्रॉइंग को. टू ड्रॉइंग, what is the amount of drawing? 15,000, 7,500 and 1,500. So I will write 15,000, 7,500 and 1,500. We have written all the drawings. Now furniture, it has adjustment 10,500. Furniture किधर आता है? Furniture comes in the balance sheet because there is an adjustment. Amount will be in the inner column, 10,500. Then purchases 1,10,000. Purchase comes in the trading account. For purchase से पहले we write opening stock. So after opening stock we will write 2 purchases in the outer column because returns are not given. 1,10,000. After purchase we have stock. This is opening stock 25,000. So I will write opening stock 25,000. And after that we have general expense. This has an adjustment 5,200. तो P&L account में आता है to general expense 5,200 because इसमें adjustment है. Then after general expense we have salary, no adjustment. Salary also comes in the profit and loss account. 2 salaries. How much is the salary? 12,000. तो इसको वर्किंग नोट में आओ. Divide salary 12,000. कैसे डिवाइड करना है? 12,000 into Jan to June. 6 महीना. 12,000 into July to December 12 months. तो ये ब्रैकेट में Jan से लेके जून कितना होता है, एंड दिस इज जुलाई से लेके दिसंबर. So how much you salaries you get? 6,000. Here also we are getting 6,000. तो सैलरी को डिवाइड करो. 6,000 in the before admission and 6,000 after admission of the new partner. After salary we have rent and taxes 5,900. तो यहाँ पे because this also comes in the P&L, rent and taxes. I will write in the short form. Rent and taxes amount is 5,900. Then we have debtors and bank, no adjustment. Debtor 31,000. So एक लाइन छोड़ के debtor 39,000 and that last one is
Bank balance 10,900. This is also not having any adjustment. Bank 10,900. Then we have capital. Capital in the capital account, partners capital account. We will write buy balance bought down. What is the amount of capital of all the three partners? 24,000, 12,000 and 5,000. So we'll write 24,000, 12,000 and 5,000. All the three capital we have posted. Now sales 1,80,000. Sales is how much? 1,80,000. So I will go to the trading account. Buy sales outer column में 1,80,000 and after sales we have creditors 13,500. So इधर लिखेंगे creditors outer column 13,500. Now we will come to the adjustment. A and B were partners sharing profits and losses equally. Before admission, partners were equal partners. After admission, profit sharing ratio के बारे में कुछ भी नहीं दिया है कि C जो admit हो रहा है उसको future का कितना profit मिलेगा, 1/5, 1/6, 1/4, 1/3, कुछ भी नहीं बोला है. So we will assume that after admission also, these will be equal partners. पहले भी A and B इक्वल थे, अभी C के आने के बाद भी तीनों इक्वल पार्टनर्स रहेंगे. 31 दिसंबर का स्टॉक दिया है 23,500. तो दिस इज क्लोजिंग स्टॉक. बाय क्लोजिंग स्टॉक, राइट इन द लास्ट कॉलम 23,500. 23,500. So I will write closing stock 23,500. 23,500. So ये adjustment भी हो गया. Now rent and taxes he paid in advance 900. रेंट एंड टैक्सेस को एडवांस में पे किया है. एडवांस है तो लेस करना पड़ेगा. लेस एडवांस. कितना एडवांस पे किया? 900. एडवांस को लेस करते, प्रीपेड को लेस करते हैं. अब बचता है 5,000. 5,000 को 6 मंथ में डिवाइड करो. हाउ मच यू विल गेट? 2,500 and 2,500. एडवांस रेंट एंड टैक्सेस है. एडवांस विल कम इन द असेट. नेक्स्ट अभी एडवांस में रेंट एंड टैक्सेस पे कर दिया. So this will come in the asset, advance rent and taxes 900. And इसके बाद we have general expenses were outstanding 800. तो general expense के नीचे एक लाइन नहीं छोड़ा. So we will have to leave one line because it's having adjustment. Add outstanding 800 ना. Yeah, how much is the outstanding? 800. So 800. तो ये 6,000 हो जाएगा. 6 मंथ में डिवाइड करेंगे तो it will be 3,000. 6,000 when divided among 6 month, आधा डिवाइड करेंगे तो it will be 3,000. यहाँ से एडवांस माइनस किया तो 5,000 हुआ. उसको भी डिवाइड किया 5,000 को तो it became 2,500. Now what is that? Outstanding general expenses. How much is the amount? 800. This is also done. Now we come to the depreciation 10%. So 10% depreciation है less depreciation. Less depreciation 10%. So 10% depreciation is 1,050. Minus करो 1,050. How much you get? 94.
50. So depreciation also will come in the P&L account. To depreciation 1050 को इक्वली डिवाइड करो, हाउ मच यू विल गेट? 1050 को इक्वली डिवाइड करो, यू गेट 525. 525. सो ये भी हो गया. नाउ व्हाट इज देयर? नाउ द लास्ट एडजस्टमेंट, share of goodwill of new partner was valued at ₹1000. So goodwill कितना है? Let us go to the adjustment. goodwill एडजस्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? कैश में नहीं लाया है गुडविल को. सो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर गुडविल? गुडविल अकाउंट हैज टू बी क्रिएटेड. कैश में नहीं लेके आया है. गुडविल इज हाउ मच? नया पार्टनर का शेयर इज 1000. टू किसको? दो लोगों को देना है. एस कैपिटल account and to B's capital account. दोनों इक्वल पार्टनर्स है तो दोनों को गुडविल कैसे मिलेगा? इक्वली मिलेगा. सो इट इज एडजस्टेड. गुडविल एडजस्टेड. बी गुडविल एडजस्टेड. ये गुडविल एडजस्ट करना है. इसको ऐसे बोल सकते हैं, बीइंग गुडविल रेज्ड. गुडविल अकाउंट को हमने रेज किया मतलब व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, हम लोग गुडविल को रेज करते हैं. मतलब जो तीसरा पार्टनर बिजनेस में आने वाला है उसका खुद का एक रेप्यूटेशन है मार्केट में. सो ही इज नॉट ब्रिंगिंग एडिशनल कैश एज गुडविल. नॉर्मली व्हेनेवर देयर इज एडमिशन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश एज गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को देने के लिए. लेकिन ये जो पार्टनर आ रहा है ये कैश में गुडविल नहीं ला रहा. गुडविल के लिए एक्स्ट्रा कैश नहीं देने वाला है. गुडविल के लिए एक्स्ट्रा कैश नहीं देने वाला है. इसके आने से बिजनेस को एक नया पहचान मिलेगा. मोर कस्टमर्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बिजनेस बिकॉज द पर्सन हु इज कमिंग इज अ रेप्यूटेड पर्सन. हिज गुडविल विल बी यूज्ड फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ द बिजनेस. दैट ये नया जो ये बिजनेस का पार्टनर होने वाला है. लाइक इफ अंबानी बिकम्स द पार्टनर ऑफ एनी अदर बिजनेस तो वो बिजनेस को फायदा होगा. अंबानी हैज बिकम द पार्टनर बोल के. तो द न्यू पर्सन हु इज कमिंग हैज हिज ओन रेप्यूटेशन. तो उसके आने से उसको एडिशनल पैसा गुडविल के लिए देने का जरूरत नहीं है क्योंकि उसके आने से बिजनेस को फायदा होगा. Then that is known as when goodwill not brought in cash, goodwill is raised. क्वेश्चन में नहीं बोला है कि गुडविल नया पार्टनर कैश में गुडविल ला रहे, मतलब नया पार्टनर कैश में गुडविल नहीं ला रहे. तो गुडविल अकाउंट ये बैलेंस शीट में लिख सकते हैं हम बिकॉज गुडविल हैज अ डेबिट बैलेंस. तो डेबिट बैलेंस मतलब असेट. तो क्या करना है हमें? हम ए और बी का अकाउंट बना रहे तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में सी ए एंड बी इज इन द क्रेडिट. ए एंड बी इज इन द क्रेडिट. लिखेंगे बाय गुडविल. बाय गुडविल कितना मिला? ए को 500, बी को भी कितना मिला? 500. इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर इज 1000 एंड दिस हैज टू बी एडजस्टेड. इसको क्या करना है? गुडविल को इसको एडजस्ट करना है. तो गुडविल को कैसे एडजस्ट करेंगे? गुडविल को कैंसल करेंगे तो डेबिट का हो जाएगा क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट. ये फर्म का गुडविल नहीं है, ये सिर्फ न्यू पार्टनर का गुडविल है. अगर फर्म का गुडविल होता तो तीनों में राइट ऑफ करते. अगर फर्म का गुडविल होता तो तीनों को मिलता. बट दिस इज द गुडविल ऑफ ओनली वन पार्टनर. ये कौन सा पार्टनर का गुडविल है? देखो किसका गुडविल रेस हो रहा है? ओनली द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. पूरा फर्म का गुडविल नहीं है, ये सिर्फ नया पार्टनर का गुडविल है. तो ये जब हम कैंसिल करेंगे, एडजस्ट करेंगे
तो सिर्फ किसको देंगे? हु इज द न्यू पार्टनर? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसको ये पूरा गुडविल देंगे और ये गुडविल अकाउंट को हम कैंसल करेंगे। ये गुडविल अकाउंट को बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। बिकॉज ये सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर है तो सिर्फ उसको ही दिया, तो इसके लिए सीज कैपिटल बना रहे, डेबिट साइड में सीज कैपिटल है तो लिखेंगे टू गुडविल, सी में 1000, सी में 1000। दिस इज ऑल्सो डन। अब क्या करना है? इसको बंद करना है। सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन, all the adjustments are done. Now close the trading account. How much you are getting? 2,03,500, 2,03,500। तो जो आएगा इसको बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? माइनस करो। हाउ मच ग्रॉस प्रॉफिट यू आर गेटिंग? दोनों को ऐड करके माइनस करो। आर यू गेटिंग 68,500? तो इसको इधर बोलेंगे बाई टू ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है? इसको इक्वली 6 महीने में डिवाइड करो। ये पूरा साल का ग्रॉस प्रॉफिट है ना, फाइनल अकाउंट्स फॉर द फुल ईयर, तो 6 मंथ में डिवाइड करो। 6 डिवाइड ग्रॉस प्रॉफिट, $68,500 into 6 divide by 12, 68,500 into 6 divide by 12 कितना आता है? 34,250 डिवाइड करो 34,250। 6 मंथ में डिवाइड किया, जैसे हम हर एक्सपेंस को 6 मंथ में डिवाइड करेंगे वैसे ही ये इनकम को भी, बिकॉज ये जो पीएनएल अकाउंट है इसको हमने बिफोर एडमिशन और आफ्टर एडमिशन के मंथ के हिसाब से डिवाइड किया है। सो 34,250, 34,250। तो इसको बंद करना है। क्या आएगा इन द पीएनएल अकाउंट? विच प्रॉफिट यू गेट द नेट प्रॉफिट। सो टू नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? हाउ मच इज द नेट प्रॉफिट कमिंग? अमाउंट बताओ नेट प्रॉफिट का। हाउ मच आर यू गेटिंग? नेट प्रॉफिट? माइनस करो एंड टेल मी हाउ मच नेट प्रॉफिट यू आर गेटिंग। 3,000 plus 6,000 plus 2,500 plus 525, it is 12,025 minus 34,250, हमें आएगा 22,225। दोनों जगह का प्रॉफिट, बिकॉज अमाउंट भी सेम है, सेम रहेगा 22,225। तो इसको डिवाइड करना है 3 पार्टनर्स में। तो बिफोर एडमिशन सिर्फ 2 ही लोगों, बिफोर एडमिशन सिर्फ 2 ही पार्टनर्स थे और वो लोग इक्वल पार्टनर्स थे, तो पहले का प्रॉफिट 2 लोगों को मिलेगा। तो कितना हो जाएगा ये? हाउ मच इट विल बी? 11,112 और 11,113, 0.5 है ना। तो एक को 2 दिया, एक को 3 दिया, तुमको किसको 2 देना है उसको 12 दो, जिसको 3 देना है। कोई 1 रुपए का डिफरेंस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए को देना है बी को देना है। ए को 0.5 का प्रॉफिट देना है, 1 रुपीज एक्स्ट्रा, तो जैसे भी दे सकते हो। अभी यहाँ आफ्टर एडमिशन देर आर 3 पार्टनर्स, आफ्टर एडमिशन देर आर 3 पार्टनर्स, तो
22,225 डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा। तो कैसे देंगे? 0,87408 और अभी टैली करने के लिए एक को एक एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तभी ये 22,225 होगा। तीनों को 8 देंगे तो एक रुपए का डिफरेंस आएगा। सो अभी ये प्रॉफिट को दूसरा इफेक्ट देना रहेगा बाय नेट प्रॉफिट। तो दोनों ए को टोटल कितना नेट प्रॉफिट मिला ऐड करो, ए को टोटल कितना नेट प्रॉफिट मिला ऐड करो, 111 4 times 1 11,112 7408 कितना होता है 18,520। दोनों का ऐड किया, इसको कितना होएगा 1113 1113 प्लस 7408 ये होता है 18,521। और लास्ट वाले को कितना मिला? लास्ट वाले को मिला 7409। बस उसको आफ्टर एडमिशन ही प्रॉफिट मिला है। अब ये सबको ऐड करो, add all of them and see what amount you are getting. 43,020, 31,021 and 12,409। तो यही सेम अमाउंट इधर भी लिखना पड़ेगा 4320, 31,021 and 12,409। नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग बैलेंस करेंगे। टू बैलेंस कैरीड डाउन, माइनस करो 15,000, हाउ मच आर यू गेटिंग 28,020। सेकेंड 7,500 माइनस करो 23,521। 7,500 माइनस किया 31,021 से, तो लास्ट में हाउ मच यू गेट 9,909। दिस इज ऑल द थ्रीज, दिस इज ऑल द थ्रीज व्हाट यू से कैपिटल बैलेंस। अभी ये कैपिटल बैलेंस किधर लिखेंगे? लाइबिलिटी में लिखेंगे कैपिटल ए बी सी। तो ए का प्रॉफिट ए का कैपिटल कितना है 28,020, बी का कितना है 23,521, सी का कितना है 9,909। तीनों को ऐड करो, हाउ मच यू गेट 61,450, 61,450। अभी टैली करो, see whether our balance sheet is tallying, see whether our balance sheet is tallying। How much 75, 75,750। Are we getting this answer? 75,750, 75,750 आ रहा है या 74,750 आ रहा है? जस्ट चेक whether you are getting this answer. All of you, are you getting this answer? 75,750. With this, our answer is tallied. Sum is done.